upcoming session will provide an inside look at the process of bringing a story from page to screen, covering how a writer works with directors, actors, and production teams to translate a story into its final form. With a warm round of applause, let's welcome on stage National Award-winning journalist and author whose journalism career has spanned more than 2 decades, our moderator for this session, Mr. Anant Vijay. And now, one of India's most celebrated creative minds, Chairman of the Central Board of Film Certification, a Padma Shri awardee and National Award-winning writer, Mr. Prasoon Joshi. Now over to Mr. Anant Vijay with a gracious request to commence the conversation. Thank you. Thank you very much. Today's topic is from script to screen. मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया सर. With your permission, it is thought to screen. तो मैं प्रसून जी का बहुत परिचय आप लोगों ने देखा ही, बहुत कई सारे अवार्ड इनको, 3 फिल्म फेयर, 2 नेशनल, पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है अवार्ड्स की. तो मैं सीधे बातचीत पर आता हूं क्योंकि अंदर मुझे कई बार कहा गया कि 1 घंटे का है और 5:30 पे एकदम खत्म कर देना शार्प. तो मैं परिचय की औपचारिकताओं से, लेकिन एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ गोवा प्रसून जी का स्वागत करें आप लोग. सर मैं इससे ही शुरू करता हूं. आपकी बहुत सारी फिल्मोग्राफी बहुत लंबी है, लेकिन आपकी एक फिल्म है भाग मिल्खा भाग. इसके आप थॉट से स्क्रीन तक जुड़े हुए हैं. दिस इज द ओनली फिल्म कि आपने उसको लिखा भी, आपने उसमें गाने भी लिखे, आपने उसमें डायरेक्टर्स को भी बहुत मदद की, डायलॉग्स भी लिखे. कैसे ये कितना, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू थिंक अबाउट ए फिल्म और उसको स्क्रीन तक ले जाना? पहले तो आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप यहाँ पर आए और इस सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं. आनंद जी स्वयं एक बहुत ही, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड राइटर्स एंड आई रियली लव हिज वर्क. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज. Yes, you're talking about thought to screen. It's important to discuss something like that, especially आज ही सुबह हम लोग, we were talking about the 100 creative minds, and I've been part of this process for a very long time. कि भाई हमारे देश में, this topic is something which interests me immensely, is also because I feel that we have a lot of story idea infanticide which happens. Stories की भ्रूण हत्या हो जाती है. जब आपके मन में कहानी या एक आइडिया आता है, तो उस आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए, the idea comes to life, that entire process tires you out thinking about it, and you somehow feel, how will I ever see this coming to life? So it's very important that we talk about it, because all of us come up with many ideas in our everyday life, and Anand ji, इतने सारे ideas होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी दम तोड़ देते हैं. And when it happens to you as a creative person, as a thinker or as a writer, आपको लगता है ये तो बहुत खूबसूरत मोमेंट है, ये मुझे दूसरों से शेयर करना है, ये बात मुझे लोगों तक पहुंचानी है. But when you follow that, yeah, can't English mostly, yeah. I'll just dabble a bit because that's okay. I think I'm a bilingual person. I have no problem in sort of whichever way you want it. The idea is to understand what I'm actually intending to say. The
the process tires you out, and there are so many practical and creative limitations which you see, and hence somewhere you lose the faith in yourself. That, listen, I was so excited with this thought, and it seems when I am narrating it or I am telling someone, the same impact is not happening. It's not resonating with the people in the same way. It made me cry, and it's not making people cry. It made me laugh. It's not making people laugh. Because if you see that Jungian collective subconscious, हम सब लोगों का एक सामूहिक अवचेतन है. There is a collective. मैं आपसे बात इसलिए कर पाता हूँ because you and me share a certain space with which we can talk. Whether it's a language, he asked me to speak in English because probably that's, see, language का आप जो भी language के experts हैं, we know that in our there is para, there is prashanti, there is madhyama, there is vaikhari in Sanskrit. The language we speak from our tongue, ये जो the one we are expressing, actually language is happening much before it, somewhere deep down us. Language, this is only an expression. I sometimes feel that, you know, and I've spoken with musicians also about this. A.R. Rahman and me have spoken about this. Some of other my good music friends have spoken about this thought, that probably the best music or the best poetry will happen in silence. When I don't have to say anything, you don't have to hear anything, and you are hearing that eternal sound which you are connected with. There is somewhere deep down, the silence is the ultimate language. Because if you see any language which we speak, whichever language you speak, is somewhere incapable of expressing the very minute thought which is happening in you. You're trying your body language, your eyes, कभी आँखों की भाषा use करते हैं आप, कभी आप body language and gestures you use, sometimes you use words, and also I just want to double a bit here. When people, being the, you know, also chair the film certification board, I hear this question, Manoj ji, aap yahan baithe hain, this question a lot of time, that the language is, you know, not, you know, people are using abusive language in an everyday life. Where is, you know, where is society going? And see, I don't want to take any value judgment here, but as a writer, I'm purely telling you, not as a head of certification board, I feel language is hard-earned. If you resort to easy language, it's very easy to use 4 letters, very easy. Lazy people use that language. The people who want to work hard with language, try work hard and choose beautiful words, because there are beautiful words. Your vocabulary, as big as your vocabulary is, better your expression will be. So let's work hard on our vocabulary. इसलिए प्रसून जी, I always say that कोई भी शब्द कठिन या आसान नहीं होता, परिचित या अपरिचित होता है. अगर आप शब्द से परिचित हैं तो वो आपको आसान लगेगा, और आप नहीं परिचित हैं तो वो आपको कठिन लगेगा. और ऐसे भी गोदाद ने कहा ही है कि सिनेमा इज द फेयरवेल टू लैंग्वेज. तो जो बात आप कह रहे हैं अभी कि भावों से होता है, तो ये बहुत सारी चीज. लेकिन मैं आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन. So this question, you just to answer that from thought to coming it to life, it's a process which really requires a lot of technical knowledge. And in the morning also I said there in the Creative Minds that of the fact that we need to make sure that our films are mystical, our films have X factor, but we reduce and remove the mysticism from filmmaking. Filmmaking is a process which should be transparent, available. Your subject will decide how beautiful it is, how great it is, how it resonates with people. But जो film बनाने का process है, वो इतना मुश्किल और इतना कठिन और दुष्कर नहीं होना चाहिए कि वो that filmmaking process is something which is mystical. अरे some
हिम्मत वाला मेक्स अ फिल्म, टैलेंट वाला नहीं, जिसके पास हिम्मत होगी, बजट होगा, ये होगा, नहीं नहीं, वो सारा प्रोसेस आप सिंप्लीफाई करिए. It's high time we do that for our youngsters. That people who've taken so much of intrigue into filmmaking, yes, there is intrigue into what you say. Of course, you are a creative person. Your poetry, your music, your films have intrigue and X factor, but not the filmmaking. The filmmaking has to be made very accessible so that this storytelling, this something which scares you, that this thought will not resonate with people. That fear, we'll have to work towards it. And it is as much as the responsibility of the people who are, senior people here. I feel that's the reason it's important to listen to them. And it's the responsibility of the seekers like you, who probably are youngsters sitting here. I'm not talking to people like Manoj ji here who are siddhast logon se nahi keh raha hu main. So that is the process. I would say this has to be demystified. Prasoon ji, since you are the master of all the formats, like reel का जमाना है, अभी आप सब लोग reel देखते रहते हैं, तो 30 seconders भी he can write. He can write poetry in longer format. He can write a script. He can write dialogues. और किताबें, कविताएं, लंबी कविताएं, छोटी कविताएं, सब आप लिखते हैं. तो जो हम बात कर रहे हैं फ्रॉम थॉट टू स्क्रीन की, इसमें कितना मुश्किल होता है. एक छोटा सा मुझे किस्सा याद आता है. राज कपूर साहब से सचिन भौमिक मिलने गए थे, और सचिन भौमिक वाज द वेरी वर्सेटाइल राइटर ऑफ हिज एज. तो वो 16-17 फिल्में बैक टू बैक हिट हुई थी. लोग राजेश खन्ना के बारे में जानते हैं, सचिन भौमिक साहब की भी फिल्में हिट होती थी. ही वेंट टू मेट राज कपूर. राज कपूर साहब ने उनसे पूछा कि भौमिक साहब आप बताओ, आपकी कहानी 2 लाइन में बताइए मुझे. फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग सिद्धस्त लोग बैठे हैं यहाँ, वो पूछते भी हैं कि व्हाट इज योर स्टोरी इन 2 लाइनर्स. 2 लाइनर्स बताइए, व्हाट इज द स्टोरी. तो सचिन भौमिक साहब नहीं बता पाए. दिन राज कपूर ने उनको बोला, कहानी एक ही है. राम था, रावण था, राम था, सीता थी, रावण आ गया. दिस इज द स्टोरी ऑफ एनी फिल्म, कि एक हीरो था, एक हीरोइन थी, एक विलेन आ गया. जैसे कहते हैं ना कि कहानी सबसे अच्छी क्यों, एक राजा था, एक रानी थी, एक राजा था, एक रानी थी, खत्म हो गई कहानी. तो ये जो फॉर्मेट में फंसता है, स्क्रीन टू फ्रॉम थॉट टू स्क्रीन, ये जो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आप चूंकि ऐसे वर्सटाइल व्यक्तित्व तो हमारे साथ हैं जो ये जानते हैं कि हर फॉर्मेट्स की कला कैसे उसको मास्टर किया जाता है. तो अभी जो बडिंग यहाँ फिल्मकार बैठे हैं, जो आपसे जानना चाहते हैं, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू राइट इन शॉर्टर फॉर्मेट एंड इन लॉन्गर फॉर्मेट. See, it doesn't matter when I approach anything, even a short film or a haiku to a long poem to a song or a poem or a script. I think first of all, you need to have a very clear vision, very clear belief and vision that what I'm trying to say, I want to say it. Believe me, it is not important if people tell you, अरे ये काम करेगा, this will not work. जो बिकता है वही टिकता है, बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलेंगी. But I think it's very important that first step is correct. Your faith and belief in what you're trying to say is immensely. It could be absolutely personal. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. When I wrote तारे ज़मीं पर the song Ma, yeah, I couldn't write for many days. I thought if the people who are familiar with the script writing, and how we have song format there, we normally describe the song. We write, then there will be a separation song. That's what was supposed to be there, yeah? And there could be various ways of writing a separation song. And I was challenged by it, that how do I make it unique? And I always believe that as film writers and film creators, we have a platform to also share something very personal. If you don't have that tone in it, that touch of yours, then you are a machine. You can't be a machine.
You're not a slot machine that यहाँ से आपने script डाली, वहाँ से acting निकल गई. That is not how you are built. There is something very deeply personal which you share. That's the platform you're looking for. And I kept on struggling with it, and I went back to my childhood when my parents were teachers. My mother had to go for a teacher's training program. And I was a young boy in Uttarakhand. And I was, boys being the eldest in the, my sisters, you act very brave. I used to act brave. Yes, you're going fine, I'll be fine without you, there's no problem. But deep down, I didn't know how to live without my mom. And I just went back to that feeling the feeling I had at that moment. And that's exactly what I wrote. मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां. यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां. And then somewhere, तुझे सब है पता है ना मां. And I went with that thought. जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं मां, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तो आके थामेगी मां. उनसे मैं ये कहता नहीं, पर सहम जाता हूं मैं मां. चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूं मैं मां. तुझे सब है पता है ना मां. Now, deeply personal experience with faith, when you go with it, it becomes universal. And that faith is what you should have in your craft. Practice as much as possible your craft. Remember, when the opportunities will knock at your door, you will not have time to practice. You would have heard that the falcon attacks the prey, catches the prey, goes up, flies up, and drops the prey alive. The question is, why did the falcon was not hungry, but why did it catch the prey? Because it was practicing the art of hunting, so that when you are hungry, you do not commit the mistake. And that's what you should remember. Keep practicing, 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 so that when the opportunity comes, your craft comes to help you, says, don't worry, I'm there. You follow your thought. You honestly follow what you are wanting to say, and the craft will be there as your ally to help. So you have to have mastery in what you do. More and more you do, better you will get at it. No books can teach you that. You have to imbibe that, you have to practice that, so that it's your left hand. And then you follow your thought to the core. Be honest, be authentic. That's all you can do. And that's what I can just share. This is no teaching. I can only share what I have learned. And I believe that unless you experience it, we don't learn it. प्रसून जी, ये तो ठीक कहा आपने, but how difficult it is to convert the personal experience, जो आपके व्यक्तिगत अनुभव थे. आपने कहा कि आपने how difficult it is to make it universal. कैसे इसको कितना चैलेंजिंग होता है ये. जैसे आपके घर का अनुभव था, आपने बताया, आपने उसको कन्वर्ट किया, आपने बताया, पर ये क्राफ्ट करना कितना डिफिकल्ट या कैसे कर पाते हैं, तो अपील पूरे समाज को करता है. जब आप शुरू में करते हैं, तो मैं जब शुरू में हिंदी कविताएं लिखता था, तो मेरी माँ मुझे कठिन काव्य का प्रेत कहती थी. और क्योंकि मैं I would invariably use very difficult words. And when you feel that you're writing poetry, and you have to use some, you have to also exhibit that you'll know the language. आप बड़ी बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. And later on you realize कि भाई ये
कुछ बात बनी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ मुझे पता नहीं, कुछ बड़े बड़े भारी भारी लफ्ज तो हो गए, लफाजी हो गई, बट कनेक्शन नहीं आया किसी से. व्हाट यू आर सीकिंग इज कनेक्ट. भाई अपनी बात, व्हाई आर यू एक्सप्रेसिंग? आप अपनी बात, आप फिल्म क्यों बना रहे हैं? लेट्स फेस इट, यू वांट पीपल टू रेजोनेट विद योर थॉट, यू वांट पीपल टू अप्रिशिएट. या आपको ऐसा लगता है, आई एम नॉट सेइंग यू कैन बी अल्ट्रूस्टिक अबाउट इट, यू कैन बी एब्सोल्युटली अल्ट्रूस्टिक, that I do believe that I was gifted with this beautiful feeling which I had. I want everyone to go through this feeling. It could be that noble as this as well. Or you could be as brutal as saying, I love people applauding, I love people clapping for me, I want to see that, मुझे वो चाहिए. कुछ भी चाहिए आपको, लेकिन आप अपनी बात लेके बाहर निकले हैं. और जिस दिन अपनी बात लेके आप बाहर निकल गए हैं, उस दिन आप स्वांतः सुखाय लेखन से बाहर. स्वांतः सुखाय means just for personal gratification, you're not creating anymore. You're creating for more than that. Then you'll have to respect, you'll have to understand that there is a way I need to communicate this. And that's where you have to learn the process. That is why an editor will tell you why I will not cut here, I will cut at this juncture, because here people will be able to otherwise I'll lose my audience here. So a screenwriter will tell you that I don't want to make this match cut or a jump cut. I want to have a match cut here. तो ये सब चीजें आप करते हैं because you want to communicate. And that is what you learn over the years, that yes, it's fantastic that you want to share your thoughts with people, but there is a process out there. And that process needs to be learned. आपको आपकी पूज्य माता जी कठिन काव्य का प्रेत कहती थी. एक प्रेत इन दिनों और आया हुआ है, विच इज कॉल्ड AI, है ना. उससे इस इमोशंस को या इस क्राफ्ट को कितना खतरा है या कितना सुविधाजनक है, या फिल्म मेकिंग पर कैसे इम्पैक्ट डालेगा AI जब आप पर्सनल को यूनिवर्सल क्रिएट कर रहे होंगे, उस क्राफ्ट को. AI is something which, first of all, I don't take AI lightly. I don't think AI is is an intervention. It's something which we haven't seen before. It's unprecedented, and if you think that there is something which will be able to tell you, or teach you about how to deal with AI, or people earlier have dealt with, no, they haven't. So there was Sam Altman was there. Times of India had a kind of meet, and I heard Sam Altman there. He was here, and we got to spend some time. AI is something which fascinates me in everything I do in the corporate world or in films. I see AI. People earlier when AI was early at a very incubation phase. People felt that AI is not going to impact creative people. It will come and take other kind of very mechanical jobs away, and that's what people predicted at that time. But what happened with AI is absolutely different. AI first interfered with creative world. AI has started mastering something which we take a lot of pride in, that is language. The turn of phrase, the language, वहां पर AI पहले दस्तक दे चुकी है. अब सवाल है कि what is going to happen? I feel सुबह भी बात हो रही थी कुछ आपके जर्नलिस्ट फ्रेंड से. देखिए, जहां भी गणित है किसी भी तरह का, that AI will be able to do. If your poetry अगर लफाजी है तो लफाजी AI कर लेगा और आपसे अच्छी लफाजी करेगा. और एक और चीज में, द पीपल हु हैव अ लिटिल स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ इंक्लिनेशन में, एक हमारे यहाँ कहते हैं एक इंडियन थिंकिंग में विद्या और अविद्या. अविद्या, द पीपल हु
just roughly to explain it, anything which is your product of your mind, which distracts you with the ultimate truth is avidya. अविद्या वो है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो दिमाग से उपजती है, दिमाग का फितूर है, कल्पना है, प्रोजेक्शन है, माया की दुनिया है। एआई हर उस चीज को करने में संभव है जो अविद्या है। एआई सिर्फ विद्या नहीं करेगी। अगर आपकी कविता किसी अल्टीमेट ट्रूथ से नहीं उपजी हुई है, इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू से समथिंग which is born out of that truth, and we can talk till cows come home. I don't want to get into philosophical world what that truth is, but a poet knows what I'm talking about. A creator knows what I'm talking about. आपका सूक्ष्माति सूक्ष्म कंपन अगर है, उस कंपन को, that minute vibration which is happening in you, if that is what you are seeking to express, you will beat AI. If it is all about amusement with words and even music, anything which is about juxtaposition, jumbling up, multiplication, that AI will be able to do. Another thing, AI will create a lot of separation, degree of separation between the creator and creation. कि दूरी बढ़ जाती है आपकी। ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव प्रोडक्ट नहीं आएगा। म्यूजिक एआई अगर से बनता है, एआई से अगर आपको कल को फिल्म बन के स्टोरी टेलिंग होती है या आपको पोइट्री मिलती है, तो पोइट्री तो सफर नहीं कर रही है, पोएट सफर कर रहा है। द डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन यू एंड द क्रिएशन इज इंक्रीज्ड। जो आपकी कलम से छिड़क कर आप लिखते थे, वो फिर टाइपराइटर पे चला गया, अब टाइपराइटर से भी चला गया, आपने बोलने लगे, और बोलने के बाद अब आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट्स देना शुरू कर दिया। So the prompts is what is leading the whole thing now. So it is the prompter, not the creator. The creator has gone there, the prompter is you. So there is a lot to think about it, how we will function with AI. And there is a dystopian view of it, there is a utopian view of it. You know that dystopian view is that it will destroy the human mind, the way we work, and the utopian world is that we will be able to create art which is very beautiful art which is for our satisfaction. वो art हम create कर पाएंगे। ये दो एकदम diagonally opposite point of view एक साथ चल रहे हैं, और मुझे लगता है truth will be somewhere in between. ये pendulum कहीं बीच में settle होगा, कुछ हम में से उस pendulum को पकड़ के लटक जाएंगे, और शायद वो कहीं बीच में बैलेंस से कुछ होगा। पर AI को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे समझने की आवश्यकता है, उस पर विचार की आवश्यकता है, डिस्कशंस की आवश्यकता है। जैसे अब लंच पर वी वर टॉकिंग अबाउट योर पोएट्री राइटिंग, आपके वो म्यूजिशियन फ्रेंड ने कहा कि आप जो लिखते हैं उसमें म्यूजिक वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और वो शुभम मुदगल के उदाहरण भी दिया उन्होंने। हाउ डिफिकल्ट और आपके लिए कितना आसान है ये करना, कि क्या आप लिखने के पहले म्यूजिक कंपोजिशन, क्योंकि अभी आपसे हम कुछ गाने भी सुनेंगे, कुछ कविताएं भी सुनेंगे, आप लोगों से सवाल भी लेंगे, कितना आसान या डिफिकल्ट होता है आपके लिए, कि क्या आप पहले लिखने के पहले म्यूजिक सोच लेते हैं? ये आपके फिल्मकार होने का या फिल्म से जुड़े होने का फायदा एक प्रसून जोशी के पोएट प्रसून जोशी को होता है इसका? मुझे लगता है कि मेरे अंदर संगीत और गीत जो है वो एक रिदम में आता है, तो मैं जनरली आई शेयर इट, एंड दैट्स द रीज़न माई जो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि मीटर से बाहर नहीं है, या उनको आसानी होती है। आपको अभी आपने सुना, प्रॉबली दैट्स द वे आई एम बिल्ड। मैं फोक म्यूज़िक पे पला बड़ा हूँ, उत्तराखंड में फोक म्यूज़िक सुना, और म्यूज़िक के माध्यम से स्टोरी टेलिंग मैंने बहुत देखी है। पहाड़ी कहानियाँ म्यूज़िकली बहुत कही जाती हैं, एंड आई हैव दैट्स अ रीज़न मैंने अभी जो प्ले भी लिखा है, आई एम कमिंग टू दैट राजा तो उसमें मुझे लगता है कि ये हर क्रिएटिव आदमी अलग यूनिक तरह से बनता है। आपके चारों ओर जो भी होता है उससे ही आप इम्बाइब करते हैं, और आपका एक यूनिक स्वरूप निकल के आता है। सो वॉट एवर यू आर मेड इज मेड आउट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड इनपुट्स यू गेट, एंड यू आर अ यूनिक पर्सन। सो मुझे थोड़ा म्यूज़िक मिला है, थोड़ा शब्द मिले हैं, कहानी कहना
आई थिंक मुझे आई लव ड्राइंग पिक्चर्स एंड इमेजेस. देखो इन्हें, यह ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदें, अंगड़ाई लें फिर करवट बदल के, नाजुक से मोती हंसते फिसल के, खो ना जाएं ये तारे जमीन पर. कई बार लोग कहते हैं कि प्रसून जोशी कविताओं में सीन लिखते हैं. अगर आप इनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको दृश्य सामने आ जाएगा. मैं आपकी कविताओं पे आऊं इसके पहले मुझे लगता है कि यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनको ये जो 100 क्रिएटिव माइंड्स का थॉट था आपका, और मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं कि ये पहले 75 क्रिएटिव माइंड्स था 2020 में, नाउ इट हैज बिकम 100 क्रिएटिव माइंड्स. तो युवाओं को आगे लाने का एक उपक्रम था और उस थॉट प्रसून जोशी जी का था. तो इनके लिए एक बार तालियां बजाइए. और मैं भी उसके फर्स्ट जूरी मेंबर के तौर पर उससे जुड़ा हुआ था. मुझे मालूम है कि हमारे देश के युवाओं ने उसको किस अच्छे से लिया था. तो इसके बारे में बताइए, क्यों ये सोचा गया 100 क्रिएटिव माइंड्स, और कितना इससे फिल्म फैटर्निटी को मदद होगी या जो यूथ होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, फिल्म की भी है, डायरेक्शन की भी, और सारी कैटेगरीज हैं. कितना क्यों सोचा ये आप लोगों ने? फिल्म फेस्टिवल में यूथ को जोड़ने का उपक्रम तो हो सकता है, ये एक हो सकती है बात, लेकिन इसके पीछे की थॉट कुछ और रही होगी जो मुझे लगता है कि आज आप सामने ले ही आई है. एमी भी यहाँ है, आपने भी बीन पार्ट ऑफ दैट. आई थिंक द फैक्ट दैट, देखिए हमारे देश में फिल्में कुछ शहरों से ही नहीं निकल सकती. वी आर टू डाइवर्स अ कंट्री. अगर इतना सेंट्रलाइजेशन ऑफ फिल्म मेकिंग होगा तो आप कैसे कहेंगे कि भाई हम फलाने एरिया के और उस रीजन की कहानियां ढंग से नहीं बता रहे? भाई कैसे बताएंगे जब वहां से लोग आएंगे ही नहीं कहानी बताने. If you centralize storytelling in a few cities in this country and people who are brought up in that cities, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो किसान को कभी देखा ही नहीं, मैंने तो फिल्मों में किसान देखा है और उसी को मैं दोबारा बना रहा हूं. तो पर्दे पे देखी हुई सत्य से उपजा हुआ सत्य क्या सत्य के करीब होगा? So the fact that if you really want true stories of India to come out, you'll have to make filmmaking accessible to people deep down in this country. जब एक गांव में रहा हुआ व्यक्ति किसान का पोर्ट्रेयल करेगा, अपने यथार्थ को बताएगा, तभी उसमें आपको you will see that there is a real reflection of the reality of that. Otherwise you will see a fancy depiction of it. I'm not saying that is not allowed. Creative world में आप वो भी कर सकते हैं, बट वो ही कर रहे हैं आप, और उसको सत्य कह रहे हैं. सत्य के प्रतिबिंब से प्रेरित होकर सत्य को व्यक्त कर रहे हैं. सत्य के प्रतिबिंब से प्रेरणा ली है और उसके बाद उसको सत्य कहना. मैंने कहा, लिखा था एक जगह कि उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे. आपने सुनी है कविता? उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे. धरती के अंतस में जो गहरे उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा. जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा. So you have to go to the roots of the country to get true films out, and that is the attempt. This 75 creative minds was because taking the barriers away and not only making films limited to the people who's fortunate to be born in a few cities in this country and make films from there, because that will be one kind of cinema. That's fantastic. It should happen. Is it fantastical? Is it inspired? Whichever way it is. But that cannot be the only cinema. And I'm very happy that regional cinema is coming up. It's good for us. A lot of new languages, first time people are making films in languages which we've not seen films before. And it's a great sign. And we should proceed further in this direction and dive deeper into it. प्रसून जी, आप आज CBFC के चेयरमैन की हैसियत से नहीं हैं यहाँ,
लेकिन सिंस आई एम ए जर्नलिस्ट सो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ आस्किंग दिस क्वेश्चन. ये क्या किया आपने 7 साल में सेंसर बोर्ड में कि कोई विवाद ही नहीं होता? वो ये क्या घुट्टी पिलाई है आपने? ना कोई फिल्मकार चिल्लाता है कि मेरे इतने सीन काट दिए, ना कहीं, मतलब एक बार वो पद्मावत के समय हुआ था, उसको भी बड़ी सफाई से आपने हैंडल कर लिया. ये क्या, व्हाट इज दैट मेडिसिन? क्या फिल्मकारों को, मुंबई वालों को गुट्टी पिला दी कि वो चुपचाप आते हैं, फिल्म पास कराते हैं और चले जाते हैं? कट भी लगाते हैं आप, ये भी पता है हमें, लेकिन वो खबर नहीं बनती, वो चिल्लाते नहीं है. कैसे ये होता है? See, first of all, I never thought I am a creative person. I never thought that I will, get into something which is a regulation or something where I have to, tell people. I put myself in the shoes of the creative people. They would never like it. किसी को पसंद नहीं होगा कि आप कहें बदलाव कीजिए. देखिए, वेंटेज पॉइंट है. लाइफ इज अ वेंटेज पॉइंट. आप किसी को आप दूसरी की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद जो मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य नहीं समझ रहा है. नॉट बीन एब्सोल्युटली कंज्यूम्ड इन द सेम वे एज आई हैव बीन टेलिंग दिस. मिसाल के तौर पे आप सोचिए, एक नदी बह रही. ये नदी जो है एक सच है. अब इस नदी में जो आदमी तैर रहा है, द वन हु इज स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड ऑफ दिस रिवर, यू आस्क दैट पर्सन, हाउ इज दिस रिवर? Might say, he or she might say that the river is aggressive. ये नदी आक्रामक है. But you ask someone who's standing at the river bank, say, how is this river? The river is very quiet, beautiful. I've been meditating looking at this river. The same reality seen differently from different vantage points. The river hasn't changed. The vantage point has. Hence, I felt that when इसीलिए मैंने जब फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का पोजीशन एक्सेप्ट की, तो मैंने कहा कि विवाद नहीं, संवाद. आप बातचीत करिए और आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा. एंड देयर विल बी अ वे आउट. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. वी आर क्रिएटिंग समथिंग विच इज नॉट देयर. अभी है नहीं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें आप बातचीत करेंगे तो ये चीज सॉल्व हो जाएगी. समझो, द बॉडी इज सच, द नेचर इज सच दैट देयर इज contentious things possible. So all I have done is try to use my whatever experience I have in creating that kind of a dialogue, which probably is what you are crediting me for. कंसेक्यूटिव थर्ड टर्म है आपका सर. ये मतलब बहुत कम होता है ऐसा कि अब मुझे पीछे से संदेश मिला है कि अब मैं कुछ आप लोगों से सवाल ले लूं और फिर वापस आऊंगा प्रसून जी के पास. एनी क्वेश्चन फॉर प्रसून जी? कोई माइक? एनी वॉलंटियर प्लीज? Hello, sir. My name is Satyam Mishra. I am from National School of Drama, New Delhi. So, sir, basically हम लोग को जब भी कोई चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और बताई जाती हैं, तो उसका लिखने का जो पक्ष होता है उस पर भी विशेष तरीके से हम लोग की बहुत सारी क्लासेस भी होती है. स्क्रिप्ट एनालिसिस की भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए स्क्रिप्ट किस तरीके से एक एक्टर को मदद करता है. तो सर, जब हम बात कर रहे हैं द जर्नी फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन, तो हाउ कभी कभी आप क्या कैरेक्टर को भी सोचकर कोई स्क्रिप्ट प्लान करते हैं, या फिर कोई कैरेक्टर ध्यान में आ जाता है उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है? किस तरीके से, क्या ये इंटरचेंज भी होता है कि कैरेक्टर से स्क्रिप्ट या फिर स्क्रिप्ट टू थ्रू कैरेक्टर? प्रसून जी बोले इसके पहले आपसे एक सवाल है मेरा. भाग मिल्खा भाग देखिए आपने? यस सर. बस ठीक है, अब आप जवाब दे दीजिए. अच्छा, तो चलिए, आपने कहा भाग मिल्खा भाग. जब वो उसमें तो खैर मैं मिल्खा जी के साथ जितना वक्त मिलता था बिताता था, कोशिश करता था कि उनको समझूं, उनके स्ट्रगल्स को समझूं. एक सवाल जो था उस वक्त, देखिए ये आपका अपना एक ही विषय पर, एज आई सेड, मैंने अभी नदी की बात की, ऐसे ही सब्जेक्ट्स भी होते हैं.
एक गांधी फिल्म बनती है, एक गांधी माई फादर बनती है, अलग अलग फिल्में बनती हैं। एक ही सब्जेक्ट को कई तरह से आप देख सकते हैं, कैसे देखते हैं आपके ऊपर है। मुझे ये लगा कि मिल्खा सिंह जी के ऊपर जब फिल्म की बात थी तो उनका एक सीन था कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था और उनको उसकी वजह से उन्होंने मेडल उनको नहीं मिल पाया। अब सवाल ये है कि वो पीछे मुड़ के देख रहे थे, उनसे मैंने पूछा भी, मैं पीछे मुड़ के देख रहा था। अब अगर एक लेखक की दृष्टि से मैंने उसको देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे कि वो अपने अतीत को मुड़कर देख रहे हैं, मैं क्या छोड़कर आया हूं, पीछे क्या था। और यहीं से मुझे लगा कि अब सारा कुछ स्क्रीन प्ले के चारों ओर बन सकता है, कि वो पीछे मुड़कर देख रहे थे अपना जीवन, अपना ट्रेनिंग पीरियड, अपना स्ट्रगल, और उस स्प्लिट सेकंड के लिए उनको अतीत उनको बुला रहा था। ये दिस इज अ पेनी ड्रॉप मोमेंट, व्हेन सच थिंग्स यू रियलाइज, देन योर इंटायर थिंग्स गेट इंटरवोवन अराउंड इट। उसके चारों ओर एक खंबा गड़ जाता है, उसके चारों ओर आप तंबू तान सकते हैं। तो खंबा गाड़ने की चीज ढूंढनी पड़ती। कई बार किसी फिल्म को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि रंदे बसंती, अनदर फिल्म विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, कि उसमें एक गाना है कि अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी। तो ये सूरज को मैं निगल गया, ये थॉट जो है कि अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, दैट यूथ इज रियलाइजिंग दैट आई हैव समथिंग, आई कैन डू समथिंग। वो पेनी ड्रॉप मोमेंट्स होते हैं। ये जब आप ढूंढ लेते हैं, इनकी तलाश करनी पड़ती है, उसके चारों ओर आप फिर बुनाई करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द, एंड एज यू सेइंग कि 2 लाइन में बता दीजिए। कई बार आप बता सकते हैं 2 लाइन में, कई बार नहीं बता सकते। देखिए, आर्ट को ऑल्सो डोंट कंफ्यूज दैट एवरीथिंग हैज टू हैव दिस 1 लाइन मैसेज एंड 2 लाइन थिंग्स, जरूरी नहीं है वो। एक हमारे यहाँ कहते हैं कि वो रस उत्पन्न होना चाहिए उस मोमेंट में। समटाइम द ट्रूथ इज इन द मोमेंट। आप रोए, आप हंसे, आप इमोशनल हुए। जो क्लासिकल डांसर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स हैं, वो मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, वो आपको बताएंगे कि उसी मोमेंट में जो हो रहा था वही सत्य था। सब कुछ उसी मोमेंट में था, कहीं जाने की कोशिश नहीं थी, कहीं पहुंचने का प्रयास नहीं था, बस उस क्षण में खो जाने का प्रयास था। मैं खो रहा था और लोग उसमें खो गए थे। ये तो अल्टीमेट ट्रूथ है। अगर ऐसा आपने अचीव कर लिया, आई सैल्यूट दैट। एनीवन एल्स? ये माइक दीजिए यहां सामने। हेलो प्रसून सर, दिस इज़ नीतू चंद्रा। कैसे हैं आप? हेलो आनंद सर। आप लोगों ने मुझे हिंदी फिल्मों में देखा है, गरम मसाला, ट्रैफिक सिग्नल, ओए लकी लकी। आज मनोज जी ने बताया कि आप लोग यू आर हियर, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक पहलू रखूं। मैं बिहार से आती हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम अ नेशनल अवार्डेड प्रोड्यूसर इन द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार एवर। एंड प्रसून सर, जो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो छवि बना के बैठे हैं, उसी छवि से लोग एक और छवि बनाते हैं, एंड देन दे गो अहेड, सेम एज द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार। जैसे लोग बात करते हैं, हाँ जी कहाँ जा रहे हो, कर रहे हो, कर लो। नोबडी टॉक्स लाइक दिस इन बिहार। जनरली कोई ऐसे बात नहीं करता है। वो एक 4-5 मिमिक्री आर्टिस्ट ने या किसी one of the 100 politicians coming from there must have spoken like that, and लोगों ने उनकी मिमिक्री करनी शुरू करी और सबको लगा कि यही भाषा है, जबकि असलियत वो नहीं रहती है। और आज तक हम हमारे जैसे मेकर्स जो अब प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं, उसको झेल रहे हैं बेसिकली। तो दूसरी बात ये है कि उससे क्या हुआ कि बहुत सारी फिल्में जो वहाँ बनाई जा सकती थी, वो ऐसी फिल्में बनने लगी वहाँ से, जो भी बनती है वहाँ से, वो इफ़ी तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि शायद वो फिल्में यहाँ तक पहुँचने लायक भी नहीं होती है। इस इतनी रिस्पेक्टेड जगह पे वैसी फिल्में जो हम लोग 20 साल से देखते आ रहे हैं। लेकिन प्रसून सर, देयर आर मेकर्स लाइक अस। जब मैं
अभी अभी हमने एक फिल्म बनाई थी करियट्ठी। करियट्ठी का मतलब है डार्क स्किन गर्ल। मैं एक भोजपुरी स्पोकन, मेरी मदर टंग भोजपुरी है, तो मैंने सोचा कि हिंदी फिल्में इतनी की हैं, आपको भी पता है मैं हॉलीवुड में थी, अभी मेरी हॉलीवुड फिल्म अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई है, तो मैंने सोचा मदर एंड मदर टंग कभी नहीं छोड़ी जा सकती है, इसलिए मैं वापस जा जा के वहाँ पे प्रोड्यूस करती हूँ। ये फिल्म बहुत ही NSD की बहुत बड़ी एक्टर हैं जो वहाँ से निकली हैं और बिहार में गांव में रहती हैं। हमने उनको लॉन्च किया और हमने बिहार के एक्चुअली 3 महीने 6 महीने मधुबनी के एरिया में हमने जॉब्स क्रिएट किए। दिस वाज द आइडिया टू डू इट। नाउ सिंस 100 क्रिएटिव माइंड्स है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे फिल्में बहुत ऊपर जा चुकी हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी, अब पंजाब में, साउथ इंडिया ऑफ कोर्स। क्या ऐसा कोई थॉट प्रोसेस होगा जहाँ पे जिन स्टेट्स से नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि फिल्में अच्छी भी आ सकती हैं, उनको एक अलग कैटेगरी में एंट्री दी जाए और फिर उसको देखा जाए, और अगर आपको लगे कि वो सक्षम है यहाँ तक पहुँचने के लिए तो उन्हें यहाँ भी दिखाया जाए, क्योंकि मैंने भी करेठी भी डाली थी, तो आई डोंट नो हाउ। आई गॉट योर क्वेश्चन। आई थिंक देखिए ऐसा है कि कैटेगरीज पे कैटेगरीज बनाते चले जाएंगे आप लोग। ना ठीक है। ज़्यादा कैटेगरीज बनाने की जगह आई थिंक सेंसिबिलिटी जो है ना, और जो उसको वृहत करना, उसको फैलाना, कि आप जब फिल्मों का चुनाव कर रहे हैं तो इनसे पूछ लीजिए, एमी जी आपके साथ बैठी हैं, इनकी फिल्में आई हैं यहाँ पर जब शुरू में। भाषा का बैरियर नहीं होना चाहिए, और फिर हम बार बार फिर कहेंगे नहीं, उस डेफिनेटली जहाँ पर देखिए बांसुरी की आवाज़ ढोल के शोर में नहीं सुनाई देती। दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ द मर्मर कल्चर्स। ऑल द मर्मर कल्चर्स जो इनको थोड़ी सुनने के लिए थोड़ी कान या थोड़ा शोर कम करने की आवश्यकता है, तो वो शोर कम करिए और वो ओवरऑल फिल्म के ओवरऑल सेक्शन का पार्ट बने। कल को एक ऐसी भाषा जिसकी फिल्में बिल्कुल नहीं आई, वो यहाँ पे ग्रां प्री जीते, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जीते, उतना एक्नॉलेजमेंट हो, उसके द्वार खुलने चाहिए। अलग से उसको एक कोटा बना करके रखने से ज्यादा ये अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि जो बिहार की आप बात कर रही हैं, तो जिस कम्युनिटी का देश में दबदबा होता है, मिमिक्री हिंदी फिल्मों में उसी की जाती है। किसी जमाने में साउथ इंडियन की मिमिक्री होती थी, फिर यूपी वालों की मिमिक्री हुई, आजकल बिहार वालों की हो रही है। बिहार से हैं तो इसलिए मैं भी बिहार का हूँ, इसलिए आप मैं जानती हूँ। दूसरी बात, और आपके भाई की फिल्म तो अभी कल ही लॉन्च हुई है, जो OTT लॉन्च किया भारत सरकार ने, प्रसार भारती ने, उसमें उनकी फिल्म है, मुझे ऐसा लगता है। सब मैंने प्रोड्यूस किया है। हाँ, तो जैक्सन हॉल्ट। बस आपकी फिल्म में तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बधाई आपको। और लद्दाखी फिल्म आई है, यहाँ एमी बैठी है, अभी इसी लद्दाखी दिखाई जा रही है मुझे लगता है। और जब हम नेशनल अवार्ड की जूरीज में बैठते हैं तो हम लैंग्वेज, तो बहुत कैटेगरीज हैं सर उसमें, तो होगा। वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ प्लीज। मुझे लगता है कि साइलेंट फिल्म भी उसमें आ जानी चाहिए। I was just a little confused. Are we doing self-promotion or questioning? With due respect. I just wanted to ask you, first of all, I just want to tell you I'm very, very enraptured by the conversation today. You are amazing. I've written 3 books. One of them is an Amazon. Okay, I don't want to get into that really. I just want to, you know, that's called mirroring. Anyway, coming back to the point. There's always a story and there's always an interpretation. Like you said, the person who's in the middle of a turbulent river will view the situation as different. But the person who's on the riverbank, very comfortable and just viewing the turbulence, will want to meditate by it and not really know how rough it can get. Similarly, I've noticed in life, you know, there's always the real story and there's always the wrong narrative or the wrong interpretation. And many times when we are focusing on biopics or any subject as a storyteller, as a scriptwriter, I've noticed that the story gets lost. The real story gets lost in the interpretation. So, I mean, what would be your advice to, you know, writers like me
that not to succumb to pressures and let the story get lost in the interpretation. Thank you. Thank My you. name is Thank Pooja you. Mishra. Thank you. I think a very good question. You're a writer yourself, and see, if you see the journey of this whole sharing your work with people. Today, actually, it's not about films anymore. It's about content, actually. And if you see what is the definition of content, anything which is shareable is content. You and me conversing, your question is content. My answer to your question is content. People sitting in this hall, their expressions is content. And what defines a good content? And as I said, what you're seeking is, are you seeking self-expression and pure self-expression? Then it is no. You need to resonate, you want to resonate. When you need to resonate, पानी में उतरते हैं कि कितना ठंडा है और कितना गर्म है, ऐसे छू छू के अपनी स्क्रिप्ट को, अपने आइडियाज को छेड़ छेड़ के, सुना सुना के, आगे पीछे जाके, जैसे गाड़ी पार्क करते हैं आप, ऐसा ही कुछ करना पड़ता है जब आप रियल वर्ल्ड में आते हैं. प्योर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वेरी डिफरेंट. मैं सटाक से लिख देता हूँ, सटाक से, उसमें मैं कुछ तब्दीली नहीं चाहता. That's me, my world, and sometime Anand ji knows this. When I recite those poems, कई बार वो बहुत शानदार वैसे ही निकल जाती हैं लोगों को से छूती हुई. तारे ज़मीं पर मैं का गाने के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है. पर कई बार मुझे लगता है कि नहीं, ये शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को इतना अच्छा नहीं लग रहा. That, do you call it compromise? Do you call it being true to what you're seeking? If you're seeking pure self-expression, well, you've done. When you feel good, you could feel good. When you feel expressed, you feel expressed. But if you're seeking more than that, then what is the harm in testing it out? What is the harm in, yes, there has to be a limit to it. But that's your conscience, your creative journey. How much do you want to have legroom for? How much you are ready to be tempered with is your decision. सर समय समाप्त हो रहा है, अब कोई प्रश्न नहीं ले पाएंगे, पीछे बहुत दबाव है. सर एक आखिरी में एक कविता सुन लीजिए. मुझे तो दबाव महसूस ही नहीं हो रहा है. यहाँ 5-6 लोग, 6 बाउंसर खड़े हैं सर. तो प्रसून जी, आप कुछ कविताएं सुना दीजिए अपनी. देश नहीं झुकने दूंगा. अरे नहीं, कैसा क्या कोई सुना. या कोई नई कविता आपने लिखी हो तो सुना दीजिए, थोड़ा ओजपूर्ण. अच्छा, ओजपूर्ण. हाँ. प्रसून जी बहुत अच्छे गायक भी हैं, आप लोग अगर डिमांड करें तो शायद गा भी सकते हैं. नहीं, सुना उन्होंने. चलिए, एक मेरा गीत है, एक फिल्म थी फिर मिलेंगे, उसमें मैंने लिखा था, खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे. खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे. बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे. हवाएं कह रही है आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा. खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे. झील एक आदत है, झील एक आदत है, तुझ में ही तो रहती है. झील एक आदत है, तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है, तेरे संग बहती है. अरे क्या बात.
झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे, उतार गम के मोजे, जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। थैंक यू। मैं धन्यवाद दे सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून you, जी, everyone. बहुत धन्यवाद, और मुझे ये मौका आप लोगों ने दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद, आभार, और आप सबों का भी बहुत आभार कि बहुत धैर्यपूर्वक आपने इस चर्चा को सुना। थैंक यू वेरी मच।